so that you can be aware where the world is heading, where the employment is, and you should not be confined to university, and you should be connected to the industry as well. The biggest question is why new energy? Why go for it? For example, हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो उनके साथ इतना हेडेक है, कभी सूरज होता है तब चलते हैं, जब नहीं होता तो ये डोंट वर्क लाइक इन क्लाउडी डेज और नाइट टाइम। तो ये इश्यू सोलर पैनल्स के साथ है। इसी तरह ईवीज को अगर हम देखें तो अगर हम अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी होती है उसको 200 किलोमीटर उसमें एनर्जी डालने के लिए वी जस्ट गो टू पेट्रोल पंप्स इन 5 मिनट्स वी हैव 200 kilometers, and compare that to EV we have to wait for like 7 hours in slow charging and then you will get 200 kilometers. So why take such a lot of headache and go for towards new energy? Biggest reason is like cost. It's very cheaper. For example, if I take electricity power generation, solar and wind is the cheapest way to get electricity now thanks to technology. And similarly, electric vehicles are 3 times cheaper than ICE vehicles to run per kilometer. They perform better, they are more reliable, like battery life is 20-30 years and motor life is similar. You have no issues, very low maintenance, and performance is even better. Like the fastest vehicle on earth is like electric, the future of powertrain is electric, so they give you more performance. Solar and wind is available everywhere in Pakistan. You just have to put a solar panel on your roof and you can generate electricity, for which alone we should go towards new energy. It's air pollution. Like you can see if you go for like in Lahore, there's so much smog, and smog is formed from smoke plus fog, and around 50 to 80% of the smoke comes from vehicles emissions, tailpipe emissions, जो धुआं होता है गाड़ियों का, और स्पेशली 2 और 3 व्हीलर्स, उसकी वजह से ये स्मॉग है. So if you replace them with EVs, you can like get rid of the smog and you increase your lifespan by 5 years. हमारा घर है, अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए और उसको हम तबाह कर रहे हैं. इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक ड्रॉट, स्टॉर्म्स, फ्लडिंग, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, जो 1 in 1,000 years की तरह वो every 10 years हो रहा है. Example of Saudi Arabia, they are abundant in oil and yet they are going towards EV manufacturing. And they have a plan by 2030, they want half of the electricity from renewable sources. And the biggest example for us is China. They are like GDP growth, 40% is due to new energy technology. Like they are the masters of solar panel manufacturing. 80% of solar panels in the world is supplied by China. They are innovating at breakneck speed, and their cars are like much better, autonomous driving, and they perform better and they are cheaper. As I have said, Pakistan is facing 2 problems. One is import bill and the second one is the greenhouse effect. So now you can see that out of this $17 billion, the 80% is utilized by the transport sector. 80% is utilized by transport sector. If this is replaced by e-cars, e-bike, 3-wheelers, 2-wheelers, so we can reduce our import business as usual. हम कुछ ना करें, हम बैठे रहें, बस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते रहें और जैसे काम चल रहा है वैसे करते रहें, तो 2060 में हमारा इंपोर्ट जो बिल है, ऑयल इंपोर्ट बिल, वो $64 बिलियन पहुंच जाएगा. और ये जो फोरकास्ट है, ये फोरकास्ट मैंने नहीं की है, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है. ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फोरकास्ट है कि ये $64 बिलियन को पहुंचेगा. और अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कराएं, हम 2-व्हीलर बनाएं, 3-व्हीलर बनाएं, 4-व्हीलर बनाएं, तो हम 2060 में इसको 0 कर सकते हैं. तो ये जो ऑयल इंपोर्ट बिल है, इसे हमें कम करना है, क्योंकि हमें अपनी जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है उसको कम करना है और हमें अपने इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आना है. अगर हम इंटरनल कंबशन या हमारी कन्वेंशनल कार्स की बात की जाए तो वो बेसिकली क्या होती है, हमारा फ्यूल से इंजन, देन उसमें कंबशन होता है एंड देन हम उसे ड्राइव करते हैं, अपने ड्राइव स्टार्ट ऑफ फ्लाईव्हील के जरिए उसे ड्राइव करते हैं. ओके, देन ईवीज में क्या होता है,
उसके कॉन्ट्ररी बैटरी होती है, बैटरी ड्राइव करवाती है आपकी मोटर को और देन हम वो हमारी कार ड्राइव होती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर उसे समझें कि ईवी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और बेसिकली उसकी इंजीनियरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो अब मैं सबको ही पता है कि मोस्टली ईवीज में जो बैटरी पैक्स होते हैं एम्बेडेड बैटरी पैक्स होते हैं, जो हमारे जो केबिन होता है केबिन के नीचे पूरा बैटरी पैक होता है। मोस्टली ईवीज में ऐसा होता है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कुछ फ्यूल सेविंग की। ऑन एवरेज अगर मैं 660 सीसी की बात कर लूँ, अच्छा तो 660 सीसी कार में 17-18 इस तरीके का एवरेज देती है, लेकिन अगर ऑन एवरेज निकाला जाए, सेडान कार तो नहीं देती, कोई भी 12 से ज्यादा नहीं देती। तो ऑन एवरेज जो है वो आपकी जो है इंटरनल कम्बशन व्हीकल वो आपको तकरीबन 15 किलोमीटर पर लीटर देती है। तो इससे हम अगर पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें, फ्यूल कॉस्ट जो अभी हमारी है उसके हिसाब से, तो तकरीबन होती है 19 रुपए। उसी के साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या मैं अगर पर्टिकुलरली हॉन्डी की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपसे बताऊं तो वो है तकरीबन 5.825, विच इज मतलब 3 times लोअर द कॉस्ट एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कन्वेंशनल कार। बाइक का ये इसलिए कॉमन हमने बाइक पर रखा था कि कॉमन में है जो CD70 यूज करता है, और इलेक्ट्रिक बाइक जो हम लोगों ने दीवान वालों ने बनाई है, इसकी स्पेक्स टोटल हमारी बाइक की जो रेगुलर है बाइक उससे बहुत मिलती होती है। ये बात हम सब जानते हैं कि CD70 में 2 लोग बैठते हैं, और हम रेगुलर में क्या करते हैं उस बेचारे के साथ इसको 4 लोग बिठाते हैं। मैं खुद अपनी कॉलेज लाइफ में 4 लोग बैठते थे और कॉलेज जाते थे। जब कॉलेज के गेट पे पहुंचते थे तो चौकीदार हम लोग का हाथ देता था, तो भाई मैं बोलता था यार 5 लोगों को काम बिठाऊंगा, 4 बंदों के तो वैसे ही बिठा के लाया। तो हमारी बाइक में ना ये इलेक्ट्रिक के हिसाब से सारी चीजें मौजूद हैं, और ये सपोर्ट करिए CD70 को। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मिड फ्रेम मोटर यूज नहीं, मिड फ्रेम मोटर यूज की है, हब मोटर यूज नहीं की। तो कैसे आप जो रेगुलर अगर आप सर्वे करें तो आपको हब मोटर की बाइक्स मिलेगी, जिसमें आप 2 बंदे अगर बैठे तो इसकी इतनी स्पीड नहीं आएगी। आपके जो डीन से भी हमारी बात हुई, उनका भी एक क्वेश्चन था कि मैं गाड़ी कहाँ चार्ज करूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अगर गाड़ी नॉर्मल चलाते हैं, कंटेस्ट चलाते हैं, तो आप उसको जो है ना उसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आप पेट्रोल स्टेशन से लेते हैं। तो उसके बजाय आप ये गाड़ियाँ जो है ये आप घर पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या पहले मुर्गी पहले है अंडा पहले आया? हमसे भी पहले ये पूछा जाता है, हम कहते हैं भाई आप गाड़ी खरीदते हैं, वो कहते हैं भाई चार्जिंग स्टेशन पे है। हम लोगों के पास जाते हैं, हम कहते हैं चार्जिंग स्टेशन लगा लें, वो कहते हैं कि आपके पास गाड़ियाँ नहीं है जो बिकी हो। सो द थिंग इज द ईजिएस्ट अडॉप्टेशन, एंड अडॉप्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। द ईजिएस्ट सोल्यूशन एंड स्पेशली जो हॉन्डी में जो हमारा ईजिएस्ट सोल्यूशन है वो आप घर पे चार्ज कर सकते हैं। 7 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी एंड यू कैन ड्राइव इट फॉर 200 किलोमीटर्स। एनर्जी स्टोरेज करने के बहुत सारे वेज होते हैं। आप डैम्स के अंदर भी आप वाटर के थ्रू स्टोर कर सकते हैं एनर्जी, बट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज gaining traction due to our mobile phones, laptops and now electric vehicles. So lithium battery has taken over the energy storage. This thing is a 20-foot container which is used by grids and industries to power their whole factory. Market is like filled with now lithium batteries because they are like 4 times better than lead acid. Their life is 4 to 5 times more and they cost only 40% more. So lithium battery has progressed a lot. This technology is getting cheaper and better every day, and that's why all the problems that we have like inconsistent supply from solar and wind, it solves it. One is completely working on the ecosystem, which starts from e-car, e-bike, charging infrastructure, battery energy storage system. So this is our milestone to meet the objectives of government of Pakistan, to meet the expectations of the public by producing all these products, which includes lithium battery, EV products, and we are planning to set up charging infrastructures across Pakistan. And we conclude that we must use e-cars, we must buy e-cars, we must encourage e-cars, e-bikes, and install solar and BESS, and limit our use of fossil fuels, and spread awareness about clean energy
ecosystem. Assalamualaikum, respected guests, dear students, आपका टीम, डॉक्टर हुसैन। मैं बड़ी आसान सी बात करूंगा आपसे। गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, आपने चला के देखनी है गाड़ी को, ठीक है ना। लड़के तो चलाते ही हैं गाड़ियाँ, लड़के हम चला के देखें, फिर अब्बा से फरमाइश करें ये गाड़ी, क्योंकि आप तो खरीद नहीं सकते, तो ये तो बेचने के लिए हैं, तो अब्बा को लाना पड़ेगा आपकी गाड़ी बेचने के लिए। दूसरा, आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑलमोस्ट बन गए हैं या बनने वाले हैं, और CS के हमारे कंट्रोल्स के लोग हैं। Of course, electric vehicle, as I see, is a combination of electrical, mechanical and controls, या जितनी AI इसमें अब आई है, तो CS के लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो I think the executives of the Nivan Motors are here. I would like, अगर मैं आपकी जगह होता तो इनसे इंटरेक्ट करता, and I would like कि मैं कोशिश करता कि I could have an internship there, कि मैं जाके प्लांट देखूं, I may have a chance to work there, and that's a future opportunity. अगर मैं आपकी एज का होता तो सबसे पहले मैं ये काम करता, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। EV आनी है, जैसे मोबाइल आए थे ना, जस्ट रिवॉल्यूशनाइज द वर्ल्ड, तो EV ने आना ही आना है।